Hello everyone, welcome back to our channel Book Study with Anu. Today we are going to start questions and answers of the 4th chapter, The Ashes That Made Trees Bloom. The first question is, why did the neighbors kill the dog? पड़ोसी ने कुत्ते को क्यों मारा? The answer is, the neighbors dragged the dog around their garden to find a treasure for themselves. पड़ोसी ने डॉग को घसीटते हुए गार्डन के पास लेकर गए ताकि वो उनके लिए खजाना ढूंढ सके. When the dog stopped near a pine tree and started scratching the ground, they dig happily hoping to find a treasure. जब कुत्ता एक देवदार के पेड़ के पास रुक गया और उसने ज़मीन पर खरोचना शुरू कर दिया, तब उन्होंने खुशी से उस जगह इस उम्मीद से खोदना शुरू किया कि वहाँ खजाना मिलेगा. When they saw that there was nothing in there except a dead kitten, they became furious at the dog. They killed it because it did not help them find a treasure. जब उन्होंने देखा कि वहाँ एक मरी हुई बिल्ली के अलावा कुछ भी नहीं है, तब वो कुत्ते पर चिढ़ गए और उन्होंने कुत्ते को मार दिया क्योंकि उसने खजाना ढूंढने में उनकी कुछ भी मदद नहीं की. सेकंड क्वेश्चन, मार्क द राइट आइटम. सही ऑप्शन पर आपको टिक करना है और ये काफ़ी आसान है. फर्स्ट क्वेश्चन, द ओल्ड फार्मर and his wife loved the dog. Option A, because it helped them in their day-to-day work. B, as if it was their own baby. C, as they were kind to all living beings. And the answer is second B, as if it was their own baby. Second question, when the old couple became rich, they, option A, gave the dog better food. B, invited their greedy neighbors to a feast. C, lived comfortably and were generous towards their poor neighbors. And the answer is C, lived comfortably and were generous towards their poor neighbors. Third question, the greedy couple borrowed the meal and the mortar to make A, option A, rice pastry and bean sauce. B, magic ash to win rewards. Option C, a pile of gold. And the right answer is option C, a pile of gold. Now, first question from page number 63. The old farmer is a kind person. What evidence of his kindness do you find in the first two paragraphs? बूढ़ा किसान एक बहुत दयालु व्यक्ति है. उनकी दयालुता का पहले 2 पैराग्राफ में क्या प्रूफ आपको मिलता है? आंसर, द फर्स्ट पैराग्राफ सेज दैट द ओल्ड फार्मर ट्रीटेड द डॉग एज इफ़ इट वर देयर ओन चाइल्ड. फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि बूढ़ा किसान कुत्ते के साथ ऐसा व्यवहार करते थे जैसे वो उनका खुद का बच्चा है. They used to feed him pieces of fish with their own chopsticks and offered him boiled rice. वो उसे मछली के टुकड़े अपने चॉपस्टिक से खिलाते थे और वे उसे उबले हुए चावल भी देते थे. The second paragraph says that the old man often turned up a sod on purpose to give food to the birds. सेकेंड पैराग्राफ में कहा गया है कि बूढ़ा व्यक्ति कभी कभी घास को उखाड़ के फेंक देते थे ताकि वहाँ जो कीड़े हैं वो पक्षी ठीक से खा सके. बोथ दिस इंस्टेंसेस प्रूव दैट द ओल्ड मैन वॉज अ काइंड पर्सन. व्हाट डिड द डॉग डू टू लीड द फार्मर टू द हिडन गोल्ड? छिपे हुए खजाने तक किसान को ले जाने के लिए कुत्ते ने क्या किया? Answer, the dog came running to the farmer, putting its paws against his legs and motioning with its head to
some spot behind. He thought it was only playing and did not mind it. एक दिन वह कुत्ता दौड़ता हुआ बूढ़े व्यक्ति के पास आया, अपने पंजे विरुद्ध दिशा में लिए और गति से सिर को पीछे की ओर ले गया और पीछे जो स्पॉट था वो दिखाना चाहता था, कुछ बताना चाहता था। पहले तो बूढ़े व्यक्ति को लगा कि उसका डॉग केवल खेल रहा है और फिर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। However, the dog kept on whinnying and running to and fro for some minutes. Then the farmer followed it a few yards to a place where it began scratching the ground. लेकिन कुत्ता कुछ देर तक चिल्लाता रहा और इधर उधर भागता रहा। फ्यू यार्ड्स यानी कुछ गज की दूरी। फिर ओल्ड मैन कुत्ते के पीछे कुछ गज की दूरी पर उस स्थान पर गए जहाँ कुत्ते ने खरोचना शुरू कर दिया था। The farmer thought there was a bone or a bit of fish buried there and therefore struck his hoe in the earth. तो ये सोचकर कि संभवतः एक दबी हुई हड्डी या मछली का टुकड़ा होगा, ओल्ड मैन ने अपनी कुदाल को धरती पर मारा। However, what he found was a pile of gold. उनके सामने सोने का ढेर चमक उठा। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ दो प्रश्न पूछे गए हैं। फर्स्ट इज़ हाउ डिड द स्पिरिट ऑफ द डॉग हेल्प द फार्मर फर्स्ट। सबसे पहले कुत्ते की आत्मा ने किसान की सहायता कैसे की। आंसर इज़ द स्पिरिट ऑफ द डॉग केम इन द फार्मर्स ड्रीम एंड फर्स्ट आस्क्ड हिम टू चॉप द पाइन ट्री एंड मेक mortar and mill out of it. With the mortar and mill it gave the farmer heaps of gold. कुत्ते की आत्मा ने जब बूढ़े किसान के सपने में आई तो सबसे पहले उसने देवदार का पेड़ काटने के लिए कहा और उससे एक ओखली और चक्की बनाने के लिए कहा और इसी तरीके से किसान को सोने का ढेर मिल गया। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड इट हेल्प नेक्स्ट। आगे किस तरह से कुत्ते की आत्मा ने उनकी सहायता की। द डॉग स्पिरिट अगेन केम इन द फार्मर्स ड्रीम फॉर द सेकेंड टाइम एंड टोल्ड द फार्मर टू collect the ash of the mortar and the mill and sprinkle it on the withered tree and they will blossom. The farmer did this in front of the daimyo and was awarded with many gifts. कुत्ते की आत्मा दूसरी बार फिर से बूढ़े किसान के सपने में आई और उसने किसान को ओखली और चक्की की राख लेकर उसे सूखे पेड़ पर छिड़कने के लिए कहा जिससे सूखा पेड़ फिर से खिल उठेगा। बूढ़े किसान ने दाइमियों के सामने ठीक ऐसे ही किया और उसे पुरस्कार के रूप में बहुत सारे गिफ्ट्स दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द दाइमियो रिवॉर्ड द फार्मर बट पनिश हिज नेबर फॉर द सेम एक्ट। दाइमियो ने किसान को पुरस्कार क्यों दिया लेकिन उसी काम के लिए उनके पड़ोसी को क्यों सज़ा दी। आंसर, द ओल्ड फार्मर हैड स्प्रिंकल द एशेस ओवर विदर चेरी ट्री एंड इट ब्लॉसम्ड। बूढ़े किसान ने राख सूखे हुए चेरी के पेड़ पर छिड़क दी और वो खिल उठा। दाइमियो was pleased to see the miracle and he rewarded the farmer. फिर दाइमियो ये सब चमत्कार देखकर खुश हो गए और उन्होंने उस बूढ़े किसान को बहुत सारे पुरस्कार दिए। His neighbor also tried his luck and poured the ash over the cherry tree but nothing happened. उनके पड़ोसी ने भी ऐसा ही करने का प्रयास किया, जो राख थी उसे चेरी के पेड़ पर डाल दी लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। द टाइनी पार्टिकल्स फ्रॉम द एश एंटर्ड दाइमियोज एंड हिज वाइफ्स आइज ड्यू टू विच दे बिगैन टू स्नीज एंड कफ।
राख के जो छोटे कण होते हैं वो डाइमियो और उनकी पत्नी के आँखों में चले गए, जिसके कारण वो छींकने और खांसने लगे। द स्प्लेंडर ऑफ द प्रोसेशन वॉज स्पॉइल्ड एंड सो द नेबर वॉज पनिश्ड बाय द डाइमियो। जुलूस के वैभव को जिसके कारण नुकसान पहुंचा और पड़ोसी को डाइमियो ने सज़ा सुनाई। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है WH क्वेश्चन पर आधारित है। चलिए शुरू करते हैं। रीड द फॉलोइंग कॉन्वर्सेशन। रवि, व्हाट आर यू डूइंग? मृदु, आई एम रीडिंग अ बुक। रवि, हु रोट इट? मृदु, रस्किन बॉन्ड। रवि, वेयर डिड यू फाइंड इट? मृदु, इन द library. Notice that what, who, where are question words. Questions that require information begin with question words. Questions जो होते हैं question words से शुरू होते हैं. Some other question words are when, why, where, which and how. Remember that what, ask about, actions, things, etc. Who, ask about people. Which, ask about people or things. Where, ask about place. When, ask about time. Why, ask about reason or purpose. How, ask about means, manners or degree. Whose, ask about processions. Read the following paragraph and frame questions on the इटैलिसाइज्ड फ्रेजेस। इटैलिसाइज्ड मतलब इटैलिक फॉन्ट में जो शब्द लिखे गए हैं, जो फ्रेजेस है इटैलिक फॉन्ट में, वो आंसर्स है और आपको इस पर क्वेश्चन बनाना है। जैसे कि फर्स्ट देखेंगे, अनिल इज़ इन स्कूल। मतलब ये एक पैराग्राफ है और इससे आपको 7 क्वेश्चंस बनाना है और इसमें जो तिरछे लेटर्स दिए गए हैं इटैलिक फॉन्ट में जो है वो आंसर्स है। इस पर आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। अनिल इज़ इन स्कूल, यहाँ देखिए इन स्कूल इटैलिक फॉन्ट में दिया गया है, मतलब ये आंसर है और इस पर आपको क्वेश्चन बनाना है। अनिल इज़ इन स्कूल, तो क्वेश्चन क्या होगा? वेयर इज़ अनिल? आई एम इन स्कूल टू। अनिल इज़ सिटिंग इन द लेफ्ट रो। अब आंसर इसमें है इन द लेफ्ट रो, तो क्वेश्चन क्या बनेगा? विच रो इज़ ही सिटिंग इन? ओके, सेकेंड क्वेश्चन हो गया। ही इज़ रीडिंग अ बुक। अब यहाँ आंसर है रीडिंग अ बुक, तो क्वेश्चन क्या होगा? व्हाट इज़ ही डूइंग? ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। अनिल्स फ्रेंड इज सिटिंग इन द सेकेंड रो। फिर से देखिए यहाँ इन द सेकेंड रो ये आंसर है, तो क्वेश्चन क्या होगा? वेयर इज अनिल्स फ्रेंड सिटिंग? ही इज शार्पनिंग हिज पेंसिल। अब देखिए शार्पनिंग हिज पेंसिल ये आंसर है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या होगा? फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज हिज फ्रेंड डूइंग? द टीचर इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब द टीचर आंसर है, तो क्वेश्चन क्या होगा? हु इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड? चिल्ड्रन आर राइटिंग इन देयर कॉपी बुक्स। सम चिल्ड्रन आर लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। यहाँ आंसर है लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, तो क्वेश्चन क्या होगा? व्हाट आर चिल्ड्रन डूइंग? बच्चे क्या कर रहे हैं? सेकेंड क्वेश्चन, राइट एप्रोप्रिएट क्वेश्चन वर्ड्स इन द ब्लैंक स्पेसेस इन द फॉलोइंग डायलॉग। आपको एक नीचे डायलॉग दिया गया है, वहाँ पर WH क्वेश्चन जो वर्ड्स है वो आपको फिलअप करने हैं। नेहा, ब्लैंक डिड यू गेट दिस बुक? शीला, यस्टरडे मॉर्निंग, तो क्या आएगा यहाँ? व्हेन। नेहा, ब्लैंक इज़ योर सिस्टर क्राइंग? शीला, बिकॉज शी हैज़ लॉस्ट हर डॉल, क्या आएगा? व्हाई।
व्हाई इज़ योर सिस्टर क्राइंग, आपकी बहन क्यों रो रही है। नेक्स्ट, नेहा, ब्लैंक रूम इज़ दिस, योर्स और हर्स। शीला, इट्स आर्स। तो क्या आएगा, हुज। ये किसका रूम है, तुम्हारा या उसका, तो क्या आएगा, हुज। नेहा, ब्लैंक डू यू गो टू स्कूल। शीला, वी वॉक टू स्कूल, इट इज़ नियर बाय। तो क्या आएगा, हाउ, आप कैसे स्कूल में जाते हो। थर्ड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में आपको WH वर्ड क्वेश्चन वर्ड्स दिए गए हैं, वो आपको नीचे फिल करने हैं। फर्स्ट, माई फ्रेंड लॉस्ट हिज केमिस्ट्री बुक, नाउ ही डजेंट नो ब्लैंक टू डू एंड वेयर ब्लैंक टू लुक फॉर इट। तो क्या आएगा, पहले वॉट आएगा और बाद में वेयर आएगा। मेरे फ्रेंड की केमिस्ट्री की बुक गुम हो गई है और उसे अभी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे और कहाँ देखे। नो व्हाट टू डू एंड वेयर टू लुक फॉर इट। सेकेंड, देर आर सो मेनी टॉयज इन द शॉप्स, नीना कांट डिसाइड ब्लैंक वन टू बाय। क्या आएगा, विच। नीना कांट डिसाइड विच वन टू बाय। वहाँ शॉप में बहुत सारे टॉयज़ थे और नीना डिसाइड नहीं कर पा रही है कि कौन सा वो खरीदे। थर्ड, यू डोंट नो द वे टू माई स्कूल, आस्क द पुलिसमैन ब्लैंक टू गेट देयर। हाउ टू गेट देयर। आपको अगर पता नहीं है मेरे स्कूल में कैसे आना है तो पुलिसमैन को पूछे कि वहाँ कैसे पहुँचना है। फोर्थ, यू शुड डिसाइड सून ब्लैंक टू स्टार्ट बिल्डिंग योर हाउस। तो क्या आएगा, व्हेन। यू शुड डिसाइड सून व्हेन टू स्टार्ट बिल्डिंग योर हाउस। आपको डिसाइड करना पड़ेगा जल्दी से कि आपको बिल्डिंग कौन से बिल्डिंग में कब बिल्डिंग में आपको घर लेना है। फिफ्थ, डू यू नो ब्लैंक टू राइड अ बाइसिकल, आई डोंट रिमेंबर ब्लैंक एंड ब्लैंक आई लर्न इट। तो डू यू नो हाउ टू राइड अ बाइसिकल, आई डोंट रिमेंबर व्हेन एंड वेयर आई लर्न इट। सिक्स्थ, you should know blank to talk and blank to keep your mouth shut, the teacher advised Anil. The answer is you should know when to talk and when to keep your mouth shut, the teacher advised Anil. Fourth question, add I am or I in to each of the following words and use them in place of the italicized words in the sentences given below. अब यहाँ आपको क्या करना है कि नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं उसमें कुछ इटैलिसाइज्ड वर्ड्स है, मतलब इटैलिक फॉन्ट में जो वर्ड दिए गए हैं आपको उसे रिप्लेस करके बॉक्स में जो कुछ शब्द वर्ड्स दिए गए हैं वो यूज़ करना है। और यूज़ करते समय सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार आपको वहाँ उस वर्ड के शुरुआत में आई एम और आई एन लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट का क्या होगा, अगर सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से अगर वहाँ इम्पेशेंट चाहिए तो आई एम लगाना पड़ेगा शुरुआत में। तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द प्रोजेक्ट अपीयर्स वेरी डिफ़िकल्ट एट फर्स्ट साइट बट इट कैन बी कंप्लीटेड इफ़ वी वर्क वेरी हार्ड। अब इसका आंसर क्या होगा, द प्रोजेक्ट अपीयर्स इम्पॉसिबल। वेरी डिफ़िकल्ट के जगह पर हमने क्या लिखा है, इम्पॉसिबल एट फर्स्ट साइट बट इट कैन बी कंप्लीटेड इफ़ वी वर्क वेरी हार्ड।
अब यहाँ एक ध्यान रखना है कि सेंटेंस का जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ही लैक्स कॉम्पिटेंस, दैट्स वाई ही कांट कीप एनी जॉब फॉर मोर देन अ ईयर। अब इसका आंसर क्या होगा? ही इज़ कॉम्पिटेंट। लैक्स कॉम्पिटेंस का हमने क्या किया? इनकॉम्पिटेंट। दैट्स वाई ही कांट कीप एनी जॉब फॉर मोर देन अ ईयर। थर्ड सेंटेंस, डोंट लूज पेशेंस, योर लेटर विल कम वन डे, द पोस्टमैन टोल्ड मी। डोंट बी इम्पेशेंट। यहाँ क्या लूज पेशेंस का क्या हो गया? इम्पेशेंट। योर लेटर विल कम वन डे, द पोस्टमैन टोल्ड मी। फोर्थ वन, दैट्स नॉट अ प्रॉपर रिमार्क टू मेक अंडर द circumstances. That's an improper remark to make under the circumstances. Not a proper का क्या किया यहाँ? Improper. Fifth sentence, he appears to be without sensitivity. In fact, he is very emotional. He appeals to be insensitive. विदाउट सेंसिटिविटी का यहाँ क्या हो गया? इनसेंसिटिव। इन फैक्ट ही इज़ वेरी इमोशनल। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इट वॉज अ कोल्ड मॉर्निंग एंड स्टार्स स्टिल ग्लोड इन द स्काई. एन ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड. द वर्ड्स इन इटैलिक्स आर आर्टिकल्स. ए एंड एन आर indefinite आर्टिकल्स एंड द इज़ द डेफिनाइट आर्टिकल। ये आपने पढ़ा ही होगा कि ए और एन जो है ये इनडेफिनाइट आर्टिकल है, साथ ही द ये डेफिनाइट आर्टिकल है। ए इज़ यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एन इज़ यूज्ड बिफोर अ वर्ड दैट बिगिंस विद अ वोवेल। एग्जाम्पल्स नीचे दिए गए हैं, अ बॉय, अ मैंगो, अ यूनिवर्सिटी। अब यहाँ यू वोवेल होने के बाद भी यहाँ एन नहीं आया है, क्योंकि ये शब्द का जो उच्चारण है वो थोड़ा अलग है। जैसे कि अम्ब्रेला में अ आया है तो एन लगाते हैं हम, लेकिन यहाँ इसका जो उच्चारण है ये यूनिवर्सिटी है, इसीलिए यहाँ ए लगेगा। एन एक्टर, एन एप्पल, एन आर। अब देखिए एच ये वोवेल नहीं है, फिर भी यहाँ एन लगाया गया है, क्योंकि ये जो एच है यहाँ पर एच साइलेंट है और हम क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं, इसलिए यहाँ एन लगेगा। यूज़ ए, एन और द इन द ब्लैंक्स. देयर वॉज वंस ब्लैंक प्ले, अ प्ले विच बिकेम वेरी सक्सेसफुल. Blank famous actor was acting in it. A famous actor was acting in it. In blank space यहाँ आएगा the play. His role was that of an aristocrat who had been imprisoned in a castle for 20 years. In the last act of the play, someone would come on the stage with a letter which he would hand over to the prisoner. Even though the aristocrat was not expected to read the letter at each performance, he always insisted that the letter be written out from beginning to end. नेक्स्ट क्वेश्चन 6. एनसर्कल द करेक्ट आर्टिकल. यहाँ आपको जो करेक्ट आर्टिकल है उसे सर्कल करना है. नीना वॉज लुकिंग फॉर अ जॉब. आफ्टर मैनी इंटरव्यूज़ शी गॉट द जॉब शी वॉज लुकिंग फॉर. ऐसे ही आपको नीचे वाले जो आर्टिकल्स हैं वो आपको सर्कल करने हैं. ए, वुड यू लाइक एप्पल और बनाना. एप्पल के लिए क्या आएगा? एन. वुड यू लाइक एन एप्पल और अ बनाना. बी, आई वुड लाइक एप्पल प्लीज़.
an apple, please. A. Take red one in the red one in fruit bowl. The fruit bowl. You may take an orange also if you like. B. Which one? A and the one beside. क्या आएगा? the one beside the banana. In this way, we have completed questions and answers of this chapter, The Ashes That Made Trees Bloom. If you like, please like, share and subscribe. Thank you.